आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एमसीक्यू. सो कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल इन फॉर बेटर प्रिपरेशन. Question number 61. Cholecystokinin is the secretion of duodenum that causes contraction of gallbladder. It is the secretion of goblet cells of ileum that stimulate the secretion of succus entericus. Option 3 is it is the secretion of liver and controls secondary sexual characters. Option 4 is it is the secretion of stomach that stimulates the pancreas to release juice. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1. कोलिसिस्टोकाइनिन ड्यूडेनम से रिलीज होता है और इसके रिसेप्टर्स गॉल ब्लैडर के ऊपर होती हैं और इस तरह से ये बाइल के रिलीज होने को कंट्रोल करता है. Question number 62. Enzyme trypsinogen is changed to the trypsin by gastrin, enterogastron, enterokinase, secretin. So correct answer is option 3. Enterokinase जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है ये इनएक्टिव ट्रैप्सिनोजन को ट्रैप्सिन में कन्वर्ट करता है. Question number 63. Castral intrinsic factor is concerned with the internal absorption of pyridoxine, riboflavin, thiamine, cobalamin. So correct answer is option 4. Castral intrinsic factor जो कि स्टमक के पेरिएटल सेल से रिलीज होता है ये विटामिन B12 या कोबालामिन की इंटरनल एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है. Question number 64. Maximum number of enzymes occurs in omnivorous, herbivorous, carnivorous, none of the above. So correct answer is option 2. मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स जो है वो हर्बीवोर्स के अंदर होते हैं क्योंकि वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं तो इस तरह उनके अंदर जो है एक ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एंजाइम जो है पाई जाती है. क्वेश्चन नंबर 65. कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन द लीवर. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. Question number 66. Renin acts on milk, changing casein into calcium paracasinate at pH 7.2 to 8.2 pH. Option 2 is it acts on protein in the stomach or it acts on the fats in the intestine. Option 4 it acts on the milk, changing the casein into calcium paracasinate at pH 1 to 3. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4. रेनिन जो है वो स्टमक के चीफ सेल से रिलीज होता है और स्टमक के अंदर जो एसिडिक पीएच होती है 1 to 3 वेरिएबल पीएच होती है. इस पीएच पर ये मिल्क के अंदर मौजूद प्रोटीन कैसन को कन्वर्ट करता है पैरा कैसिनेट के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. क्वेश्चन नंबर 67. लैक्टियल्स टेक पार्ट इन डाइजेशन ऑफ मिल्क, absorption of fat, digestion of lactic acid, none of the above. So correct answer is option 2. Lacteal is take part in absorption of fats. Question number 68. Muscular contraction of alimentary canal are called circulation, deglutition, churning, peristalsis. So correct answer is option D. Muscular contraction जो alimentary canal के अंदर होती हैं उन्हें peristalsis कहते हैं. Question number 69. Fatty acid and glycerol are first absorbed by lymph vessel, blood capillaries, hepatic portal vein. So correct answer is option 1. Fatty acid और glycerol जो है सबसे पहले lymph vessel के अंदर absorb होते हैं. Question number 70. During prolonged fasting, the first fats are used up followed by carbohydrate from the liver and muscles and then protein in the end. Option 2 is first carbohydrate are used up followed by the fat and protein towards the end. Option 3 is first lipids are consumed then followed by protein and carbohydrates towards the ends. तो इसका ऑप्शन जो 4 है वो है none of the above. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2. ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग जो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ होते हैं फिर उसके बाद फैट्स और फाइनली जो है वो प्रोटीन कंज्यूम किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 71. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब्ड इन इलियम? फैट, बाइल साल्ट्स, विटामिन के, ग्लूकोज. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 के इलियम के अंदर बाइल साल्ट्स और इसके साथ विटामिन बी की जो है एब्जॉर्प्शन होती है. क्वेश्चन नंबर 72.
Which food substance is absorbed without digestion? Carbohydrates, protein, vitamins, fats. So correct answer is option 1. कार्बोहाइड्रेट्स जो कि मोनोसैकेराइड की शक्ल में होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो ये जो है विदाउट डाइजेशन एब्जॉर्ब किए जाते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 73, mucus is secreted by stomach, duodenum, large intestine, all of the above. So correct answer is option 4. जो म्यूकस है वो स्टमक से भी, ड्यूडनम से भी और लार्ज इंटेस्टाइन से भी रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 74, वाटर एब्जॉर्प्शन इज मेनली अकर इन कोलन, इंटेस्टाइन, गैस्ट्रियम, अपेंडिक्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो मेनली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है। Question number 75, which of the following absorbed in proximal intestine? Iron, sodium, bile salts, vitamin B12. So correct answer is option 1. आयरन के साथ साथ कैल्शियम भी जो है वो ड्यूडनम के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं, जिसे हम प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, substances which are not related with hepatic portal circulation is amino acid, fatty acid, glucose, फ्रक्टोज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। फैटी एसिड जो है वो लैक्टेल्स के ज़रिए एब्जॉर्ब किए जाते हैं। इसके अलावा अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, jaundice is a disorder of skin and eyes, digestive system, circulatory system, excretory system. So correct answer is option 2. jaundice जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है जो बेसिकली बाइल साल्ट्स और मेनली बिलीरुबिन की वजह से होता है, और इसमें स्किन और आइज जो है वो येलो हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 78, लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। तो यही करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों मौजूद होती हैं। Question number 79, if for some reason the parietal cells of the gut epithelium becomes partially non-functional, what is likely to happen? pH of the stomach will fall abruptly. Option 2 is triepsin will become more effective. Option 3, protein will not be adequately hydrolyzed by pepsin into proteases and peptones. Option 4 is pancreatic enzymes and especially the trypsin and lipase will not work efficiently. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3 कि अगर पेरिएटल सेल्स नॉन फंक्शनल होता है तो उससे HCl रिलीज नहीं होगा, जो कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में नहीं कन्वर्ट करेगा। अगर पेप्सिन नहीं बनेगा तो प्रोटीन जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन नंबर 80, in stomach after physical and chemical digestion the food is called chyme, chyle, amino acid, बोलस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 कि स्टमक के अंदर फिजिकल और केमिकल डाइजेशन के बाद जो बाकी फूड बनती है उसे काइम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, फुल्ली डाइजेस्टेड फूड रीचेज टू द लीवर बाय हेपाटिक पोर्टल वेन, हेपाटिक आर्टरी, हेपाटिक वेन, ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 कि फुल्ली डाइजेस्टेड फूड जो है वो लीवर तक पहुंचती है बाय मींस ऑफ हेपाटिक पोर्टल वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर आपने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस भी देख लें, उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 82, अ पर्सन हु इज ईटिंग राइस हिज फूड कंटेन सेलुलोज, स्टार्च, लैक्टोज, प्रोटीन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। जो राइस है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2, उसके अंदर स्टार्च होगी। Question number 83, in mammals milk is digested by the action of renin, amylase, intestinal bacteria, invertase. So correct answer is option 1। रेनिन जो है मैमल्स के अंदर वो मिल्क की डाइजेशन करके उसे जो है वो कैल्शियम पैराकैसिनेट के अंदर चेंज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 84, stool of a person contains whitish grey color due to malfunction of which type of organ? pancreas, spleen, kidney, liver। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4 लीवर। क्वेश्चन 85, which of the following is a disaccharide? glucose, fructose, sucrose, galactose। so correct answer is option 3। sucrose जो है वो क्या है, एक डाइसैक्राइड है।
Question number 86. If all the peptide bond of protein are broken, then the remaining part is amide, oligosaccharide, polypeptide, अमाइनो एसिड. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 कि अगर पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन के अंदर टूट जाते हैं तो उससे प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड के अंदर चेंज हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 87. हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिपिड यील्ड फैट्स, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, मेनोज एंड ग्लाइसरोल, माल्टोज एंड फैटी एसिड. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 कि अगर लिपिड की हाइड्रोलाइसिस होती है तो उससे हमें फैटी एसिड और ग्लाइसरोल हासिल होते हैं. Question number 88. Glucose and galactose unite to form maltose, sucrose, isomaltose, lactose. So correct answer is option 4. Glucose और galactose जब मिलते हैं तो उससे lactose बनता है. Question number 89. Gastric enzyme pepsin act only in acidic medium within a limited pH concentration. Its pH varies from 1.2 to 1.8, 1.0 to 1.50, 2 to 2.50, 1.5 to 2.6. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4. 1.50 से 2.60 तक पीएच जो है वो वेरी करती है स्टमक के अंदर, जिस पे पेप्सिन जो है वो वर्क करता है. क्वेश्चन नंबर 90. Stomach in vertebrates is the main site for the digestion of protein, carbohydrates, fats, nucleic acid. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1. जो प्रोटीन्स हैं उनकी डाइजेशन वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो स्टमक में होती है, क्योंकि स्टमक के अंदर पेप्सिन मौजूद होता है जो प्रोटीन डाइजेशन करता है. क्वेश्चन नंबर 91. The chief function of bile is to digest fats by enzymatic action. Option 2 is it emulsified fats for digestion. Option 3 is it eliminate the waste product. Option 4 is it regulate the digestion of protein. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2. जो बाइल है वो मेनली क्या करता है, फैट्स की एमल्सिफिकेशन करता है ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सकें.